The great Albert Einstein once remarked that all the students are genius. Everyone is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, whole of its life it will think that it is stupid. It's a fair enough observation, but I don't know in what context he meant this. See, we know the ability of a fish. By default, it is a swimmer. But how will we know what is the ability of a small child being admitted to school? Only when, after about a few years of education, after a few years of formal training, we would be in a position to say what is the talent in that boy. In fact, Indians have taken this Einstein saying very seriously and they go overboard. वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि in Indian syllabus is something, Indian curriculum is something where हाथी, मछली और शेर और सांप सबको हम एक क्लास में बिठा देते हैं and irrespective of whatever is the ability of the students, we thrust upon them the same syllabus, which is quite unfair. ऐसे भी बोलते हैं। देखो, ये सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है ना, ये सुनने में ह्यूमरस लगता है। दिस इज़ द थिंग दैट वी यूज टू रिडिक्यूल आवर पैटर्न ऑफ टीचिंग टू स्टूडेंट्स। बट यू टेल मी वन थिंग, अभी शेर है या सांप है या भालू है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये हाथी है, ये सब तो डिफरेंट एनिमल्स है ना, डिफरेंट एनिमल्स हैं एंड देयर सेट ऑफ स्किल्स, इंट्रिंसिक स्किल्स, आई मीन द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, वो गॉड गिफ्टेड है। So when it comes to children, we are not teaching different species like that. In a classroom 60 children हैं तो सब human beings है ना, तो वहाँ पे ये तुलना कहाँ से आ गई? And all the children, we believe, have the ability to learn ka kha ga ga ABCD. Later on, we might just come to know that some are quick learners, some are slow learners. वो ठीक है. But by and large, all children are human beings. So we are not, that analogy doesn't apply here. ठीक है ना? But what is the essence, what is the spirit of that saying is that we have to consider the talent or the inherent ability of a student before, only then he will blossom in that particular field. ये भी ठीक है, मैं absolutely right it is. अगर एक गायक को आप बैंक का क्लर्क बना दोगे तो हिज टैलेंट इज वेस्टेड, वो तो समझ में आती है। बट टैलेंट पहचानने के लिए भी कुछ साल तो लगेंगे ना, पैदा होते ही तो वो स्टैंप लग के तो आता नहीं है कि ये अकाउंटेंट बनेगा ना इंजीनियर बनेगा, वैसा तो नहीं होता ना, इट विल टेक टाइम। यहाँ तो 15 साल लग जाते हैं, 10th तक आने तक भी पेरेंट्स आर नॉट एबल टू नो व्हाट आर द टैलेंट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड विच फील्ड इज सूटेबल फॉर देम, उनको तो वो भी नहीं पता चलता। पैशन होना चाहिए, पैशन वाले फील्ड में डालो। जो बच्चों का एबिलिटी है, जो टैलेंट है, जिसमें उनको पैशन है, वो उसमें डालो, वो दे विल शाइन, दे विल बिकम सक्सेसफुल। एब्सोल्युटली राइट। बट व्हाट इफ द पैशंस ऑफ द चिल्ड्रन आर फ्लिकरिंग? 4-5 साल की उम्र में वो बच्चा गाता अच्छा है, 7-8 साल की उम्र में वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, उसके बाद में वो 9th-10th में फोटोग्राफी अच्छा करने लगता है। आप बताइए कौन सा पैशन वाला फील्ड उसको परस्यू करनी चाहिए? दैट इज़ वाई आई स्ट्रेस अपॉन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। एक फॉर्मल एजुकेशन चलने दो। फॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट द आंसर टू योर पैशन वाला फील्ड, वैसा नहीं है वो तो आपको अलग से खोजना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट मेकिंग यू लिटरेट, just giving you options to select what you are good at. Okay. I'll give an example. Some time back a student came to me from Dombivli and he said, sir, I am good at announcement and my voice is good, मुझे radio jockey बनना है, RJ बनना है। Very good. क्योंकि he has a clear vision कि मुझे RJ बनना है। He was doing BCom graduation. तो मैंने उसको बोला कि हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट इट?
ही सिट्स एट दादर में एक आरजे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. आई विश टू जॉइन दैट. Then I said, okay, how many students do they take in a particular year? He said, the students come from different states and I think they take 300 students per year. I said, radio jockey, you like connecting with people, you like to say good morning Mumbai, सब बोलने को तेरे को अच्छा लगता होगा, इसलिए तू वो चुन रहा है, ठीक है. But 300 children are being trained or 300 students have been trained for this RJ every year. 5 साल में हो जाएंगे 1500 students will be ready to become RJs, right? In Mumbai कितने चैनल्स हैं FM के, आप बताओ? 10, 12, 15. एक पर्सन को 4-5 घंटे का सेशन मिल जाता है, तो 6-7 RJ से एक रेडियो स्टेशन का काम चल गया. तो दैट मेक्स इन होल ऑफ मुंबई the total quantity or the total number of posts for RJ is only about 100 only. और साल में 300 बच्चे पास हो रहे हैं, 5 साल में तो 1500 का बैकलॉग हो जाएगा. एंड सपोज ए वेरी यंग RJ जो 22-24 साल का है and he gets a job, is he going to leave that job for another 15-20 years? No. बल्कि और एक्सपीरियंस होता जाएगा तो उसकी तो और वैल्यू बढ़ जाएगी. तब क्या करोगे? What is going to be the fate of another 1400 children who would have completed the course? Passion है वो ठीक है, but आपका passion जो है, are you ready to wait that long for your turn? Luckily he had done his BCom, so I don't know in what job he is right now, but what I'm trying to bring the point is the passion वाला जो jobs होते हैं वो बहुत कम होते हैं. अब फिल्मों में देखो, ये सुनने में अच्छा लगता है, ये फिल्मी कंसेप्ट ही है. ये चिल्ड्रन शुड बी मेड टू गो इनटू द फील्ड इन विच दे हैव पैशन. बोलने को अच्छा लगता है, सुनने को अच्छा लगता है, ये इमोशनल अपील है इसमें. और पिक्चर में आप देखोगे ना, कोई भी फिल्म ले लो आप, जो हीरो होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, वो क्या करेगा? पैशन वाला फील्ड में जाने का. किस में जाएगा? मालूम है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. नहीं, घूम फिर के पैशन मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, एक ही चीज़ पैशन की होती है इंडियंस लोगों में. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, अरे जंगल ही कितने बचे हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तुम करोगे? सब लोगों को स्कोप है क्या उसमें? माई पैशन इज प्लेइंग क्रिकेट. जब धोनी कैप्टन बन गया था, 7-8 लोगों का तो जगह अड़ गया था अनदर 8-10 ईयर्स. गौतम गंभीर, हमारा वीरेंद्र सहवाग, कोई भी कैप्टन नहीं बन पाए टिल द टाइम दैट धोनी रिटायर्ड. इन पैशन फील्ड, जो ऑक्यूपेशंस है, जिसको हम पैशन वाले ऑक्यूपेशन बोलते हैं, उसमें द प्लेस इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज और द नंबर ऑफ ऑप्शंस देयर एट द टॉप इज़ वेरी लिमिटेड. सो द मोर नंबर ऑफ पीपल विल गो इनटू इट, दे विल सफ़र. बिकॉज वो लोग, अगर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ पैशनेटली और किसी कारण से नहीं बना, और फिर मुझे फाइनली बैंक का क्लर्क बनना पड़ गया, अकाउंटेंट बनना पड़ गया, या कुछ और रेलवे में मुझे कोई और जॉब करनी पड़ गई, तो होल ऑफ माई लाइफ आई विल नेवर हैव दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. बिकॉज कहीं ना कहीं मेरी ब्रूडिंग चलती रहेगी कि ये वो काम मैं कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए. सो दिस इज़ वॉट द स्टूडेंट्स हैव टू बी टॉट, दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल. वी हैव टू ट्राई, नो डाउट अबाउट दैट. हमको ट्राई ज़रूर करना है कि मेरा अगर लाइकिंग के हिसाब से, मेरी हॉबी के हिसाब से मेरा कोई प्रोफेशन बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. एंड वेयर इज़ द गारंटी दैट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम पैशनेट फर्वर और स्पिरिट? यू माइट जस्ट लूज इंटरेस्ट. ये भी हो सकता है. Like one of the professor from Thana was telling me, I was very passionate about teaching, connecting with children and all. After about 5-7 years, the fist went out, खत्म हो गया. मज़ा नहीं आता है अभी वही पढ़ाने में. रिपीटेटिव है, मोनोटनस है. एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो आर डिसइंटरेस्टेड इन कॉलेज. दे वांट ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू पास आउट एग्जामिनेशन. बोलते हैं अभी मुझे पढ़ाने का पैशन खत्म हो गया. मैं बोला फिर सर आप कंटिन्यू क्यों कर रहे हो? क्या करूँ मैं अभी? माई फैमिली इज़ बेस्ड ऑन दिस इनकम. सो ही इज़ एक्चुअली पुलिंग इट ऑन, खींच रहा है. तो ये पैशनेट वाला चीज़ भी थोड़े दिन के बाद वेयर आउट हो जाता है ना. तब क्या करोगे आप? तब क्या करोगे बताओ. सो करियर जब हम डिसीशंस लेते हैं ना, ये बोलना बहुत आसान है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बच्चों के पैशंस रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं. अब 60 बच्चे आप दोगे एक टीचर को एक क्लासरूम के अंदर,
और बोलोगे 35-40 मिनट में आप हर एक स्टूडेंट को नापो भापो, जो करना है करो, उनके एप्टीट्यूड पता करो, उनकी IQ पता करो, उनके पसंद नापसंद पता करो, उनके पैशंस पता करो, और फिर उनको करियर के लिए गाइडेंस करो, कहाँ इतना वक्त मिलेगा उनको? उनको ओरल्स भी लेना है, एग्ज़ाम्स भी लेना है, पेपर भी करेक्शन करनी है, गवर्नमेंट ड्यूटी भी करनी है, सब कुछ वही 35-40 मिनट में टीचर्स कैसे करेंगे बताओ? देन यू विल से टीचर्स ऑफ द स्कूल्स आर नॉट प्रॉपरली गाइडिंग माई चिल्ड्रन, एंड ऐसे बोलोगे आप। तो बोलना है कि भाई चलो हम लोग को हाथी वाला पढ़ाने का, अभी इज़ इट पॉसिबल? आप बताओ ना, 60 बच्चे मेरे क्लास के अंदर हैं, तो मैं हर एक के लिए सिलेबस, हर एक के लिए एक सब्जेक्ट रखूँ? तू म्यूज़िक सीख भैया, तू डांस सीख, तू वायलिन सीख, तू गिटार सीख, क्योंकि तेरा उसमें पैशन है, को फोटोग्राफी, फिर कैसे होगा वो वोकेशनल फील्ड है वो। बाय द टाइम द स्टूडेंट कम्स टू 4th और 5th स्टैंडर्ड, 8 or 10 years of age, you can keep trying, you can give many options to the child. You can put him in cricket to see whether he is interested. If he is interested, he will put in more energy. You can't force him. How will we know what is the field of interest? क्योंकि वो करने में वो बच्चा थकेगा नहीं। आप ड्राइंग के साधन लाकर देखो, he will keep on drawing, he will keep on painting without getting tired. Then you can just think about that. This may be his field. साइकिल खोल कर बना रहा है वो, कोई बल्ब ठीक कर रहा है, कोई फैन ठीक कर रहा है, उसको मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, ये बात है। तो एप्टीट्यूड या टैलेंट या पैशन के हिसाब से प्रोफेशन होना चाहिए, बिल्कुल लाजमी है, बट ऐसा मेजॉरिटी केसेस में हो नहीं सकता है, बिकॉज देर आर सो मेनी प्रोफेशंस विच डोंट फॉल इनटू दैट पैशन वाला कैटेगरी। क्या करोगे फिर? वो तो करना तो पड़ेगा ना हम लोगों को। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम इट जस्ट बिकम्स अ मुंडेन चोर्स, दैट्स व्हाट, रेगुलर काम हो जाता है। मेरे लिए पहला सेंचुरी मारना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा होगा, बट 90-100 सेंचुरी मार चुका है सचिन तेंदुलकर, वैसे लोग हैं, तो इट्स अ रूटीन जॉब फॉर। और वो भी पैशन एक लेवल के बाद, वो टेस्ट मैच में आ गया, वनडे में आ गया, उसके बाद उनका पैशन नहीं होता है, वो प्रेशर हो जाता है वो पोजीशन को कीप अप करने के, एवरी डे टू गेट अप एंड गो इनटू द फील्ड। अब वो लेवल पर पहुंचने के बाद उसको वो नाम मेंटेन करना जो है वो बहुत बहुत भारी पड़ जाता है उसको। So try to find out what is the talent, what is the passion among the children, but that is not the thing which can be satisfied through formal education. आपको बाकी के क्लासेस में डालने पड़ेंगे उनको। Parallel together with this, take out some time and put him in some hobby classes and just tap the things. देखो क्या है, बट यहाँ क्या है कि मोस्ट पेरेंट्स जो है वो बच्चा को बस सर्वगुण संपन्न समझते हैं। आई हैव सीन पेरेंट्स रनिंग पिलर टू पोस्ट एवरी डे। आज ये क्लास तबला में भी डाल देंगे, वो उसको टेक्वांडो में भी डाल देंगे, उसको फिर ड्राइंग क्लास में भी, क्यों? मार्क्स के लिए। सो यहाँ पर बच्चे का पैशन या उसका इंटरेस्ट मायने नहीं रखता है। इंटरमीडिएट में ए मिल गया, बी मिल गया, चलो 2% उसको 10th स्टैंडर्ड में मिल जाएगा। सो मोर देन द पैशन फॉर एनी फील्ड, the career options are driven by how much opportunity do I have for job, how much opportunity through that job I will be earning. ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। Therefore, how do you imagine that a formal education देने वाले एक स्कूल जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे उनके करियर में? नहीं हो सकता। They can only teach the syllabus and furthermore what the students are good at. फिर भी देखो काफ़ी स्कूल्स जो हैं स्पोर्ट्स की कंपटीशन में बच्चों को भेजते हैं, एलोकेशन में भेजते हैं, डिबेट में भेजते हैं, क्विज़ में भेजते हैं, जहाँ तक स्कूल के फंक्शंस होते हैं उनको डांस का मौका देते हैं, उनको सिंगिंग कंपटीशन का मौका देते हैं, इंटर स्कूल में मौका देते हैं। नाउ इट इज़ अप टू द स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड। और आप देखोगे कि 60 बच्चों में वही 10-15 बच्चे जो हैं वो इन सब कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हैं, बाकी सब बच्चे जो हैं वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। देयरफॉर ये पैशन वाला जो ऑप्शन है ना वो बहुत कम वर्ग के बच्चों के लिए है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबडी। So most of the children would be well with the formal education. So we can't discard formal education saying ये कुछ काम का नहीं है, मेरा टैलेंट नहीं पहचानता। बट वो उसका काम है ही नहीं, वो उसका काम है ही नहीं। वो उसका काम तो टैलेंट पहचानना, पैशन क्या है बच्चों का पहचानना, ये तो पेरेंट्स का काम है। और some specialized people for that who may be counselors, who may be people like that.
जो आपकी IQ समझे, जो आपकी पसंद नापसंद समझे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी से दैट लोगों को पैशन वाले फील्ड में डालो, तो आप सोचो उसमें स्कोप कितना है। बहुत कम स्कोप है ना, बहुत कम स्कोप है, द नंबर ऑफ जॉब्स आर लेस। तो वहाँ पर इतने हज़ारों बच्चों को चांस नहीं है ना, नहीं हो सकता ना। अब देखो 1989, 88, 89 में शिवाजी पार्क में सचिन तेंदुलकर खेलते थे रमाकांत अचरेकर के अंडर में, ठीक है। 200, 250, 300 बच्चे तो हर साल खेलते हैं उधर। मैं तो करीब 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1988, 89 की बात कर रहा हूँ, 30 साल पहले। तब से लेके आज तक हर साल 300 बच्चे खेल रहे हैं, 1 लाख बच्चे खेले होंगे उधर। बट और एक जीनियस आया क्या सचिन जैसा, बताओ ना। तो पैशन फॉलो करने से वो नहीं हो जाता है ना, वो आपके अंदर वो लेवल ऑफ टैलेंट भी होना चाहिए। एंड देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, बैकग्राउंड है, मॉनिटरी कंसिडरेशन है, एंड एवरीबडी नोज नाउ दैट देयर इज सो मच ऑफ नेपोटिज्म ऑल्सो, देयर सो मच ऑफ नेपोटिज्म। मेरे अंदर टैलेंट होगा, एक्टिंग की भी टैलेंट होगी, तो धर्मेंद्र मेरे को लेके पिक्चर बनाएगा क्या? वो सोचेगा भाई सन्नी देओल है मेरा लड़का, ये है, ये कैसे भी एक्टिंग करेंगी, उनके बच्चे हैं, भाई पिक्चर चली तो चली, पैसा अपना है, नहीं भी चली तो कौन सा, मेरा बेटा है, उसको कौन सा पैसा देना है। तो उसी तरह से आप देखो, क्रिकेटर के बच्चे क्रिकेट में आ रहे हैं, गाने वालों के बच्चे गाने में आ रहे हैं, फिल्म के बच्चे फिल्म में आ रहे हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो रहे हैं। अब डॉक्टर का एक बेटा मेरे को बोलता है, सर मेरे को तो माँ बाप ने करियर का ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, माई फादर एंड मदर बोथ आर डॉक्टर्स, उन्होंने हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, बोलता बेटा तेरे को ही संभालना है। अभी बताओ, मैं तो कैद हो गया ना, अब मेरे को मेडिकल प्रोफेशन पसंद हो या ना पसंद हो, मेरे को बनना तो डॉक्टर ही है। तो अब उसका पैशन कुछ भी हो जाए तो वहाँ वो क्या कर सकेगा। सो बच्चों का करियर जो है, इट इज़ नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन वॉट दे लाइक, वॉट दे आर केपेबल ऑफ। इन इंडियन सोसाइटी देर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट डिटरमिन दैट।